Hello guys, welcome back. So guys, today we are going to discuss all the NCERT questions and some extra questions which are important for your board exams and NEET also. Before starting today's video, I would be suggesting you guys to buy one reference book for yourself. I'm saying this because if you have covered your NCERT syllabus, but I'm damn sure that you will be having some issues regarding few topics, because few terms and sentences or topics in NCERT are not explained properly, and you'll feel problems regarding those. So I would be suggesting you all to buy Arihant All-in-One, because this is very fantastic book regarding the purpose of your examinations. क्योंकि इस बुक में सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हैं, अलॉन्ग विद upgraded question paper pattern, that is the MCQ form of questions are also given, and a few previous year questions also that are important as the purpose of for both and the NEET appearance. So I would be suggesting you guys to buy this latest edition of 2021 CBSE all-in-one, and you will really find it helpful regarding your board examination and as well as for NEETs also. So guys, let's start discussing the questions. So first type of question we are going to discuss today is very short answer type questions. It means they are 1 mark questions, and you have to just give the answer of these questions in a very short terms, or just in 1.5 lines. So first question is given, define the lifespan of an organism. So basically what is the lifespan? Lifespan is defined as the period of an organism from its birth to its natural death. यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं. Now the next part of question is mentioning the lifespan of cow and mayfly. So basically lifespan of cow is about 15 years, and the second one is given as mayfly. So it is very interesting to know that mayfly lives only for 1 day, or you can say the 24 hours. Okay, so the next question we have been given over here is, name the biological process that enables the continuity of species. So the answer is given on the next page, which is the reproduction. So guys, let's begin with our video today. And the first type of questions we are going to discuss is very short answer type question. It means these are the 1 mark question, and we have to just give very short answer of these questions. So here the first question is given, define the lifespan of an organism. Mention the lifespan of the crow and the mayfly. So basically in this book the answer of these questions are given on its right side of the page here. The first answer of the question is, the period from birth to natural death of an organism is lifespan. So basically यहाँ पे लाइफ स्पैन को डिफाइन किया गया है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बर्थ से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं. सो क्रो की लाइफ स्पैन होती है अबाउट 15 ईयर्स, और मे फ्लाई की होती है 1 डे, और यू कैन ऑल्सो राइट डाउन एज 24 hours. Okay, now next question is given here, name the biological process that enables the continuity of species. So basically continuity of species किस चीज़ से, कौन से biological process से होगी? So here the answer given is reproduction. So basically reproduction is the process due to which the continuity of species remains over on the earth. Now next question is given, why is the offspring
formed by asexual reproduction is referred as a clone. This is the question given in NCERT also. Or offspring produced by asexual reproductions are called clones. Justify giving 2 reasons. So third question में हमें पूछा गया है कि जो asexual means of reproduction से offspring या फिर new individual form होते हैं उन्हें हम clone क्यों कहते हैं। और इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके ऐसे पूछा जा सकता है हमसे कि जो भी offspring asexual reproduction से produce होते हैं उनको हम clone कहते हैं। So give up the 2 reasons. इसके 2 reasons हमें बताने। So basically here is the answer of this question. Offspring produced by asexual mode of reproductions are called as clones because ऐसा इसलिए कहा जाता है they are morphologically and genetically similar to each other. It means morphologically मतलब physical appearance यानी कि physical appearance से और genetically यानी कि chemically and physically they are similar to each other यानी कि जो ऑर्गेनिज्म या फिर ऑफस्प्रिंग ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फिजिकली एंड केमिकली एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर होंगे। एंड द सेकंड रीज़न इज गिवन कि दीज आर द आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ दियर पेरेंट्स यानी कि अपने पेरेंट्स की ये एकदम आइडेंटिकल कॉपी होते हैं। इट मीन्स कि ये एकदम डिक्टो अपने पेरेंट्स की तरीके लगते हैं। तो दीज आर द 2 रीजन्स ड्यू टू विच द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ asexual reproduction are called as clone. Now next question is given, name an organism where cell division itself is a mode of reproduction. यानी कि ये हमसे पूछ रहे हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बताओ जहाँ पे सेल डिवीजन होता है और यही सेल डिवीजन उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो देयर इज आंसर इज गिवन एज अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं बनते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। दे जस्ट सिंपली डिवाइड themselves to form the new offsprings. So these are examples, lower type of organisms like amoeba, paramecium, etc. Now the next question given is, name the type of asexual reproduction where the parent cell ceases to exist. यानी कि ऐसा हमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मीन्स में बताना है जिसमें कि पेरेंट सेल एग्जिस्ट करता है। सो बेसिकली ये होता है हमारा फिजन, यानी फिजन ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड है जिसमें कि हमारा पेरेंट सेल एग्जिस्ट करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर इज आर क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statements is true for Hydra। यानी कि जो नीचे के 3 statements दिए गए इनमें से हाइड्रा के लिए कौन सा सही है। फर्स्ट पार्ट इज गिवन that it produces by asexual gametes. Second is it reproduces or produces unicellular bud, and the last one is it produces multicellular bud. So the correct answer of this question is given third one. It means multicellular organism like Hydra reproduces asexually by producing multicellular bud that further develops into a new organism. यानी कि जो हाइड्रा होता है वो एक मल्टीसेलुलर बड प्रोड्यूस करता है अपनी बॉडी में जो कि आगे फर्दर डेवलप होता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। Now next question is, which of the following statement is true for yeast? First statement is the cell divides by binary fission. One of them develops into a bud. The cell divides unequally. The smaller cell develops into a bud. The cell produces chondria, which develops into a bud. So यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हमें दिए हैं, उनमें से हमें बताना है कि हमारा ईस्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। So let's check out the answer. And the answer of this question is second, that is in yeast the division is unequal and small buds are produced that remain attached initially to the parent cell but eventually get separated and mature into a new yeast organism. It means यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो हमारी
ईस्ट होती है उसमें अनइक्वल डिवीजन होता है, यानी कि जो डिवीजन होता है वो ऐसा डिवीजन होता है जिसकी वजह से हमारा अनइक्वल और स्मॉल बर्ड्स प्रोड्यूस होती हैं ईस्ट में, जो कि स्टार्टिंग ऑफ द टाइम में हमारी पेरेंट ईस्ट या फिर पेरेंट सेल से अटैच रहती हैं। जो भी फूड है उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो पेरेंट सेल के थ्रू पूरी होती है। एंड जब धीरे धीरे वो एक दूसरे मतलब मैच्योर हो जाते हैं एंड दे आर एबल टू अरेंज फूड एंड अदर essential nutrients for them, they get separated from the yeast, the parent yeast, and develops into a new organism. Now the next question given is, how do spores help in survival under unfavorable conditions? यानी कि पूछ रहा है इसमें कि जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं सर्वाइवल में जब वहाँ पर अनफेवरेबल यानी कि फेवरेबल कंडीशन एब्सेंट होती है एटमॉस्फेयर में। तो हाउ डू द होल spores help the plant? So basically answer is of this question is, the spores are covered by thick wall which prevents them from dissection under the unfavorable condition. It means कि जो spores होते हैं वो एक thick wall से cover होते हैं जो कि उनके dissection under favorable condition यानी कि जो dissection होता है उसका prevent करते हैं, उनके उसमें उन्हीं में डिसेक्शन को प्रिवेंट करते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है। सो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेन फंक्शन हो रहा है हमारा थिक वॉल का, यानी कि जो थिक वॉल्स है हमारी प्रेजेंट है स्पोर्स पे, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सर्वाइवल ऑफ स्पोर्स ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द एल्गे दैट प्रोड्यूसेस asexually थ्रू ज़ूओस्पोर्स। Why are these reproductive units called so? यानी कि हमें ऐसे एल्गा का नाम देना है जो कि एसेक्सुअली तो रिप्रोड्यूस करता है, बट यहाँ पे एक स्पेशल टर्म दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी कि ज़ूओस्पोर। इट मीन्स कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वो जो ऐसा एल्गे जो कि ज़ूओस्पोर से रिप्रोड्यूस करता है। और सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का कि जो इसका रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है उसको ज़ूओस्पोर क्यों कहते हैं। सो बेसिकली इसका आंसर होगा क्लामाइडोम्स, यानी कि क्लामाइडोमस जो होते हैं वो ज़ूओस्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। और इन रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को ज़ूओस्पोर कहने का मतलब यही होता है, रीज़न यही होता है कि ये मोटाइल होते हैं। इट मीन्स कि जो ज़ूओस्पोर्स या फिर रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रेजेंट होती हैं क्लामाइडोमोन्स में, वो हमारा ज़ूओस्पोर्स इसीलिए कहलाती हैं क्योंकि वो मोटाइल होती हैं। सो बेसिकली रीज़न फॉर कॉलिंग दीज रिप्रोडक्टिव यूनिट्स एज ज़ूओस्पोर इज जस्ट बिकॉज दे आर मोटाइल। नाउ आवर 10th question is, how does penicillium reproduces asexually? It is very important question and I feel myself that this question is important as a purpose of NEET also, क्योंकि बहुत ही common question है but people generally do mistake while doing this question. So answer is penicillium reproduces asexually by condia formation which is quite common in fungi, यानी कि ये कॉन्डिया फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड दीज कॉन्डिया फॉर्मेशंस आर जनरली सीन इन ऑल द फंगीज, एक्सेप्शनल इज ऑलवेज देयर इन एवरी केस, बट कॉमनली इनको फंगाई में ही सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को देखा जाता है। ओके गाइज, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इज, दैट इज द क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ब्रायोफिलम, यानी कि ब्रायोफिलम के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, जर्मिनेटिंग बट अपीयर्स फ्रॉम द आई ऑफ द स्टेम ऑफ ट्यूबर। सेकेंड इज, द जर्मिनेटिंग bud appears from the nodes of the rhizome. And the last statement is given, germinating bud appears from the notches at the leaf margin. And while I have discussed the vegetative propagation with you guys, I have told you that bryophyllum की leaf पे, यानी कि leaf margins पे small
लीफी बड्स डेवलप होने लगती हैं, जो कि फर्दर जिनमें रूट्स डेवलप हो जाते हैं, एंड आफ्टर दे गेट लिटिल मैच्योर दे गेट सेपरेटेड. सो यहाँ पर लास्ट दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, यानी कि जो लीफी मार्जिन की है लीफ की, वहाँ पर हमारे स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जिनमें रूट होगी, एंड आफ्टर दैट they get matured, they separate themselves from the bryophyllum, parent bryophyllum, and they themselves develop as a new individual. Now next question we are going to discuss is the question number 12. Name the vegetative propagules in the following: agave and bryophyllum. So basically guys, मैंने बताया था आप लोगों को कि vegetative propagules क्या होते हैं, कि they are the special स्ट्रक्चर्स जो कि किसी भी प्लांट में डेवलप होते हैं फॉर हेल्पिंग देम इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेल्स. सो अगेव में हम देखें हमारा, तो अगेव में हमारा बल्बिल प्रेजेंट होता है. बल्बिल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल स्ट्रक्चर और द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल. ओके, एंड ब्रायोफिलम में जैसे कि हमें प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया है, सो बेसिकली उसमें लीफी बर्ड्स होती हैं या एडवेंशियस बर्ड्स प्रेजेंट हो जाती हैं लीफी मार्जिन में. जैसे कि हम अगर एग्जांपल इसका हम छोटा सा देखें, तो अगर ये ब्रायोफिलम की लीफ है एंड दिस इज़ द लीफी मार्जिन, सो बेसिकली ये लीफी मार्जिन होगी, तो यहाँ पे छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, and these leaf-like structures have roots also. So जो roots होती हैं they have this structure to develop as a new individual. Now our next question is identify the figure given below and mention the vegetative part that helps it to propagate as the vegetative propagule. So this is ginger. एंड आई हैव टोल्ड यू ऑल्सो वाइल डूइंग द चैप्टर कि जिंजर में हमारा राइजोम प्रेजेंट होता है, दीज डार्क कलर्ड स्ट्रक्चर्स. इफ वी सेपरेट दिस पार्ट फ्रॉम द होल जिंजर फ्रॉम दिस ब्लैक स्ट्रक्चर एंड पुट इट इन द सॉइल, दिस separated structure will develop into a new plant. So basically this is ginger and it has rhizome as the vegetative propagules. Okay, now next question is why do vegetative propagule in sugarcane and ginger appear from the nodes? It is also very important question, and the question is saying कि sugarcane और ginger में जो vegetative propagules होते हैं वो nodes से ही क्यों develop होते हैं? What is the reason behind this? So basically इसका आंसर है कि जो हमारी नोड्स होते हैं उसमें हमारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं. सो दीज मेरिस्टेमेटिक सेल्स हेल्प्स द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स टू रिमेन इन द प्लांट फॉर वेरी लॉन्गर टाइम एज अ हेल्दी पार्ट एंड हेल्प्स देम टू जर्मिनेट एज अ न्यू प्लांट. सो दीज वर द क्वेश्चन ऑफ 1 marks. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 1 which are of 2 marks, यानी कि लगभग से लगभग हमें 2 से 3 लाइन में इनका आंसर देना होगा. So the first question is list and describe any 2 vegetative propagules in flowering plants. So basically हम कोई भी 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं. मैंने आप लोगों को इतना सारा एग्जाम्पल बताया हुआ है, जैसे कि हमारा रूट्स हो गया, स्टेम्स हो गई, लीव्स हो गई. जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारे घर में जो गार्डन होता है वहाँ पे ग्रास प्रेजेंट होती है. So these grasses have a very special vegetative propagules. इनकी स्टेम से एक स्पेशल कैरेक्टर या फिर स्ट्रक्चर डेवलप होता है जो कि उनसे दूर जाता है. मान लेते हैं अगर ये ग्रास है हमारी और ये इसकी स्टेम है, तो यहाँ से एक स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर डेवलप होगा और ये यहाँ पे सॉइल में जाके टच हो जाएगा, और जहाँ पर ये टच होगा वहाँ से हमारा न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा. सो दीज आर एक्चुअली द ट्यूबर्स. So these tubers help the plant to reproduce asexually by the means of vegetative propagation. And the second vegetative propagule is our bulb.
बल्ब हमारा प्रेजेंट होता है जिंजर एंड गार्लिक में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी इज is there any relationship between the size of an organism and its lifespan? Give 2 examples to support your answer. So इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की साइज और उसके लाइफ स्पैन के बीच में कोई रिलेशनशिप होता है, और अगर होता है तो हमें 2 एग्जाम्पल से अपने आंसर को सपोर्ट करना होगा. सो बेसिकली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी हमारा रिलेशनशिप नहीं होता है साइज एंड लाइफ स्पैन में किसी भी ऑर्गेनिज्म के. हम एग्जाम्पल देखते हैं. हमने देखा था कि फ्लावरिंग प्लांट्स में कुछ टाइप्स होते हैं, एनुअल, बायनियर, पेरिनियल एंड यूजुअली फ्लावरिंग प्लांट. सो हम पहला एग्जांपल इसी पार्ट से ले रहे हैं हमारे एनसीईआरटी के. ये जो मैंगो ट्री होता है वो एनुअल होता है, यानी कि इसकी शॉर्टर लाइफ स्पैन होती है एज़ कम्पेयर टू बनाना ट्री, जिसमें जो कि बहुत लार्ज लाइफ स्पैन का होता है और लार्ज साइज भी होता है इसका. अब देखते हैं कैसे. हमारा मैंगो ट्री है वो एनुअल प्लांट है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ग्रो करता है. वहीं हमारा बनाना ट्री है, बैनियन ट्री है. सो हमारा जो बैनियन ट्री है हम देखते हैं वो 120 ईयर्स, 100 ईयर्स, 200 ईयर्स ऐसे लाइफ स्पैन का होता है. बट जो साइज़ होती है, यानी कि दोनों ट्रीज़ की जो साइज़ होती है वो लगभग सिमिलर होती है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड अनदर एग्जाम्पल इज साइज ऑफ क्रो एंड पैरेट, यानी कि पैरेट और क्रो की जो साइज़ होती है वो लगभग सिमिलर होती है, बट जो लाइफ स्पैन होता है उनमें काफ़ी अंतर होता है. जो हमारा क्रो होता है वो 15 ईयर्स के लिए सर्वाइव करता है, वहीं हमारा पैरेट होता है वो लगभग 140 ईयर्स के लिए सर्वाइव करता है. तो वी कैन से फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स दैट देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन साइज एंड लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज why is reproduction essential for organism? This is the question from your NCERT. सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिप्रोडक्शन किसी ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है. सो बेसिकली हम 2 पॉइंट्स बताएंगे इनमें कि रिप्रोडक्शन इसलिए पॉसिबल एसेंशियल है ऑर्गेनिज्म के लिए कि जो रिप्रोडक्शन होगा इससे उस स्पीशीज़ की एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी, यानी कि कोई भी स्पीशीज़ एक्सटेंट नहीं होने पाएंगी. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा डोडो बर्ड थी, डोडो बर्ड एक्सटेंट हो चुकी है एज प्रेजेंट टाइप में. दिस इज़ बिकॉज वन ऑफ द रीज़न कैन बी द रिप्रोडक्शन डिफिशियंसी, यानी कि जो हमारे पीपल थे हमारी सोसाइटी में वो डोडो बर्ड को मार दे रहे थे, एंड ड्यू टू विच दे वर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस. उनको मीटिंग के लिए कोई भी पार्टनर नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वो एक टाइम पीरियड के बाद एक्सटिंक्ट हो गए. एंड द सेकेंड रीजन ये भी हो सकता है कि रिप्रोडक्शन से हमारा किसी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन कॉज होने के भी चांसेस रहते हैं. जैसे कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से अगर कोई ऑर्गेनिज्म हमारा रिप्रोड्यूस कर रहा है, सो बेसिकली उसमें वेरिएशन के चांसेस बहुत रहेंगे, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो 2 पेरेंट्स यानी कि मेल एंड फीमेल से आ रहा है, तो वेरिएशन कॉज होने के चांसेस 99% रहते हैं. सो एक बार हम लोग आंसर देख लेते हैं पीछे क्या दिया हुआ है. सो हियर द आंसर इज़ गिवन कि फर्स्ट रीज़न तो वही दिया हुआ है कि इससे लाइफ साइकिल मेंटेन रहती है अर्थ पे, और न्यू एडिशन होता है इंडिविजुअल का हमारे पॉपुलेशन में, जो कि एक प्रट्यूशन हमारे स्पीशीज़ के हेल्प करता है. एंड द लास्ट पॉइंट हियर इज गिवन कॉज वेरिएशन अमंग द पॉपुलेशन. एज आई हैव टोल्ड यू कि अगर सेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस कर रहा है कोई ऑर्गेनिज्म तो उसमें वेरिएशन और एवोल्यूशन होने के 99% चांसेस होते हैं. एंड दिस इज़ बिकॉज कि जेनेटिक मटेरियल होगा न्यू इंडिविजुअल में वो हाफ मेल गैमीट यानी कि मेल पेरेंट का होगा और हाफ फीमेल पेरेंट का होगा. Now next we are going to see our question number 18, which is mention 2 inherent characteristics of amoeba and yeast that enable them to reproduce asexually. यानी कि हमें amoeba and yeast के ऐसे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने होंगे जो उन्हें asexually mode of reproduction से reproduce करने में हेल्प करते हैं. So basically answer of this question can be
unicellular organism like amoeba and yeast reproduce asexually because उनका एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है और यूनिपेरेंटल कंडीशन होती है, यानी कि उनका ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है एंड वो यूनिपेरेंटल होते हैं, यानी कि वो सिंगल पेरेंट होने के बाद भी रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और एक रीज़न हो सकता है कि जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये चूज़ करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ये इन्हें फास्ट मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करता है, यानी कि दे रिप्रोड्यूस वेरी फास्टली एंड मल्टीप्लाई देमसेल्व्स। ओके, नाउ our next question number 19. So the question is, in yeast and amoeba the parent cell divides to give rise to a new individual cell. How does the cell division differ in those two organisms? यानी ये जो ईस्ट एंड अमीबा होता है उनमें पेरेंट सेल खुद को डिवाइड करके न्यू इंडिविजुअल सेल में चेंज करती है। सो वी हैव टू गिव अप द डिफरेंस बिटवीन द सेल डिवीजन दैट अकर्स इन ईस्ट एंड अमीबा। सो लेट्स सी। So the reason is and the difference between these division is कि जो yeast होती है उसमें न्यूक्लियस डिवीजन होता है, यानी कि उसका न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसके बाद उसमें एक बड बन जाती है पेरेंट सेल में, जो कि इनिशियली उस पेरेंट से अटैच रहती है एंड आफ्टर सम टाइम इट गेट्स सेपरेटेड एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। एंड जो अमीबा होता है उसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होता है न्यूक्लियस डिवीजन से, जो कि न्यूक्लियस हमारा 2 न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में डेवलप हो जाता है एंड फर्दर द कॉन्ट्रैक्शन इन साइटोप्लाज्म occur and the parent amoeba divides into the 2 daughter amoebae. Okay, now our next question is question number 20. Draw yeast cell reproducing by budding and show the following labels: bud, nucleus of bud, parent cell and nucleus of parent cell. So इसमें हमें एक ईस्ट को ड्रॉ करना है, ईस्ट का डायग्राम ड्रॉ करना है जो कि बडिंग प्रोसेस से रिप्रोड्यूस कर रहा हो। So basically we have to see draw the example over here. So I will be showing you guys the diagram. Okay, so this is our bud, that is this is our yeast. Okay, so this is the parent cell and this is the nucleus. Here the nucleus division take place and the nucleus divides in 2, and after the nucleus division a new bud is formed over the parent cell and it grows by taking the essential all the requirements of nutrition from the parent cell, and after some time it will divide itself from the parent cell and develop into a new organism. So these were the all type of questions we have been discussing in this video, and Thank you guys for watching, and like, share and comment, and also put in the comment box the next topic which you want me to come up with the video. And guys, just let me know if you want the PDF of this video in the comment, and subscribe to my YouTube channel for more such informative videos. Thank you once again.